हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आप फिर अपना नैक्सट लैक्चर लेके आए हैं यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 जो अपना चल रहा सीगा ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਾਲ ਤੇ ਵੇਗ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਅਸੀਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ 11ਵੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਦ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ टाइम विद इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, तो यह द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड ਵੈਲੋਸਿਟੀ। याद करो 9वीं क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਕਟਰ, ਸੌਰੀ ਉਹ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का फार्मूला की है? वेलोसिटी का फार्मूला भी वही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उन्ना टाइम। यूनिट की बनूगी? डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की सैकेंड का बन गई मीटर पर सैकेंड। तो यदि भी सेम होगी मीटर पर सैकेंड। डायमेंशनल फार्मूला की बनूगा? MLT लिखते होंगे आप हम। M है मास है नहीं है तो 0, L है मीटर, कितनी पावर है 1, सैकेंड भी है, टाइम है पर नीचे है मतलब -1। तो इसका डायमेंशन फार्मूला भी वही MLT। मास ये भी नहीं है, लेंथ टाइम -1। तो डायमेंशनल फार्मूला सेम है। ठीक है, यूनिट सेम है पर डेफिनेशन ये फर्क है। हम जो इनू आप नोट करांगे तो ये वैल्यू है, वैल्यू ऑफ वैल्यू लिखना सीगा, नॉट वेलोसिटी। वैल्यू है जी वैल्यू ऑफ स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो स्केलर क्वांटिटी ने उनकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, इट्स वैल्यू जी हैगी है कैन बी नेगेटिव, इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एरोहेड। ठीक है, ये पहला पॉइंट सी में डिफरेंस लिखिए, ये दूजा पॉइंट सी, ये तीजा पॉइंट सी, ये चौथा पॉइंट है। पहला, दूजा, तीजा, चौथा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरोहेड। मतलब लिखने वाले उहदे उपर की पावांगे आप एरो पावांगे इस तरह। ठीक है, एक उधर आप स्केलर ते वेक्टर च मैं गल दसनी भुल गया सी कि जिहड़ी स्केलर क्वांटिटीज होंदियां जां वेक्टर क्वांटिटी दीज आर एडेड और सबट्रैक्टेड बाय simple law of algebra
ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲਾ ਆਫ ਅਲਜਬਰਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 60 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 40 ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋੜ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੰਪਲ ਜੋੜ ਜਾਂ ਘਟਾ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੱਧ ਹੈ, 60 ਵਾਲੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਹੈ, 20 ਵੱਧ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂकि ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ एडिशन ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन of different velocities is done by law of geometry। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਾ ਆਫ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਜਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਟਾਈਪਸ ਸਪੀਡ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ठीक है। तो एक तो है साढ़े को यूनीफॉर्म स्पीड, यूनीफॉर्म स्पीड। तो यूनीफॉर्म का मतलब की हो गया एक समान, जिन्होंने पंजाबी च पढ़िया हुआ है एक समान। एक समान का मतलब कि जेकर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे, जिवें मैं मान लो इत्थों कोई बॉडी ए तो चली आ बी है, मान लो ये डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, ठीक है। इत्थों 9 बजे चलिया, 9:10 इत्थे पहुंचा, तो की हो रहा है 9:01, 9:02, इस तरह 9:03, इस तरह 9:04। तो हरेक 1 मिनट च कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1 किलोमीटर, ठीक है। तो बराबर समय दे विच बराबर दूरी जिहड़ी हैगी वो कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर इन द इक्वल टाइम इंटरवल। तो इन्हों बोलांगे ये यूनीफॉर्म स्पीड है। समझ लगे कि बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनीफॉर्म स्पीड। इसी तरीके नाल इहदे विच भी यूनीफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो इहदे विच शब्द की सिर्फ आ जाऊगा, सेम एग्जांपल ही चलूगी, बस वो शब्द क्या आएगा इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि बॉडी जिहड़ी है इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दे विच, तो की बन जू साडे कोल यूनीफॉर्म वेलोसिटी बन जूगी, ठीक है। समझ आ गया। इसदा मतलब है इक्वल डिस्टेंस का इक्वल टाइम का मतलब कि बराबर समय दे विच बराबर जो बॉडी दूरी तय करती है तो बोल रहे हैं यूनीफॉर्म स्पीड या यूनीफॉर्म वेलोसिटी। सैकेंड जिहड़ी साडे कोल टाइप हैगी है वो हैगा वेरीएबल स्पीड। वेरीएबल स्पीड ये जिहड़ी टाइप है ये यूनीफॉर्म मोशन चाहती है, यूनीफॉर्म मोशन। इसको ਆਪਾਂ बोलांगे कि मोशन जिहड़ा हैगा वो यूनीफॉर्म है कि बॉडी बराबर समय दे विच बराबर दूरी तय कर रही है। ये दोनों ये भी ते ये भी। वेरीएबल स्पीड का नाम, जो वेरीएबल का मतलब क्या होता है, वेरीएबल के नाम से पता लग रहा है कि जो चीज फिक्स नहीं हैगी, जो चीज बदल रही है। मतलब जिवें यही एग्जांपल ले ली आपां कि 9 बजे चलदे सी, 9:10 ते पहुंचे हैं, ठीक है, हरेक किलोमीटर, ठीक है। तो इत्थे हुण होया की है, पहले मान लो 9:01 ते 1 किलोमीटर कवर किया, पर अगले 1 मिनट च की कर लिया ने 2 किलोमीटर कवर कर ले, अगले 1 मिनट च ने की कर लिया 1.5 किलोमीटर कवर कर ले, अगले 1 मिनट च ने फिर किलोमीटर कवर कर लिया। तो की हो रहा है, समा तो बराबर ले रहे हैं 1 मिनट, पर हरेक समय अंतराल दे विच वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो अलग अलग कर रहे हैं। ये नहीं कि हर एक बारी बदलूगा, मान लो पहला 4 बारी 1 सी, फिर 1.5 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 3 आ गया, इस तरह कि उसकी स्पीड जी है लगातार बदल रही है। स्पीड बदलता पता किवें लगता है कि समा बराबर समय अंतराल दे विच बराबर टाइम इंटरवल दे विच इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, तो उन्होंने बोलांगे वेरीएबल स्पीड। तेनों आपां की बोलांगे, किहड़ा मोशन है ये, नॉन यूनीफॉर्म मोशन। किहड़ा मोशन बोलांगे आपां, ये नॉन यूनीफॉर्म मोशन।
बिल्कुल सिमिलरली इधरले पासे आ जाऊगा नॉन यूनीफॉर्म मोशन ते उहदे विच किहड़ी वेलोसिटी बनती है वेरिएबल वेलोसिटी। तो वेरिएबल वेलोसिटी हुई कि मैंने बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो बोलांगे पर नॉन यूनीफॉर्म मोशन दे विच आंदा है वेरिएबल वेलोसिटी। थर्ड जिहड़ा साडे कोल इहदी टाइप हैगी है वो है ये एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हुण एवरेज शब्द का मतलब की होंदा है एवरेज औसत जिन्होंने आपां पंजाबी कहने औसत। जिवें आपां छोटे क्लासां आपां सवाल कढदे हुंदे आ कि तुहाडी क्लास दे विच जेकर हैगे ने 5 बच्चे ने तां 5 दे जिहड़े हैगे ने एक टेस्ट होया सी 50 नंबर दा तो किसी के नंबर 40 आ गए किसी के 45 आ गए किसी 30 आ गए किसी 35 आ गए तो औसत कड्ढो कितनी आई। तो औसत किवें करदे सारिਆਂ ਦਾ जोड़ बटा जिन्ने बच्चे ने पेपर दिता जिवें 5 दे सीगा तो 5 के नंबरों का जोड़ बटा 5 तो जिन्ना आंसर आ जाऊगा कि आ जाऊगी सारे की औसत आ जाऊगी। जिवें औसत हाइट कढ लेनी होने कि अलग अलग बच्चे ने अलग अलग उन्होंने हाइट है तो औसत हाइट किवें कढांगे सारे की हाइट का जोड़ बटा जिन्ने बच्चे ने अपने कढने हैं जिन्ने बच्चे हैगे ने उहदे नाल असीं भाग कर देंगे। तो इहदे विच भी की है एवरेज स्पीड किवें कढ सकदा मतलब की हो गया साडे कोले कहते व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद ए वेरिएबल स्पीड then the average speed of the object is that constant speed with which a object cover the same distance in a given time as it does while moving the variable speed during the given time. Average speed of the given motion is defined as the ratio of the total distance traveled by the object to the total time taken. ਹੁਣ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ 9 ਵਜੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ 9 ਵਜੇ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਲੋ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ किते तेज होया है किते स्लो होया है तो एवरेज स्पीड की होगी कि कितना टोटल डिस्टेंस ने कवर किया बटा उन्हें टोटल टाइम कितना लग्या। जे आप फाइंड कर लांगे तो साडे कोल की आंसर आ जाऊगा एवरेज स्पीड। जो मोशन की होवे नॉन यूनीफॉर्म तो टोटल डिस्टेंस पॉन टोटल टाइम को आप की बोलांगे एवरेज स्पीड बोलांगे। जानो आप ऐ भी कह सकते हैं कि मान लो एक वेरिएबल स्पीड नाल गया जिवें हुण वेरिएबल स्पीड दे नाल जा रहा है ठीक है इन्हें एक डिस्टेंस कवर कर लिया मान लो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ही कवर किया वेरिएबल स्पीड के नाल पर कहता जेकर यही डिस्टेंस यह एक कांस्टेंट स्पीड से कवर करता ठीक है ये वेरिएबल स्पीड है बढ़ रही है घट रही है पर जेकर यही डिस्टेंस एक कांस्टेंट स्पीड से कवर करता ठीक है तो वो जी कांस्टेंट स्पीड के उन्ने टाइम च जिन्ना टाइम नूं लग्गिया जिवें 10 मिनट लगे ने मान लो 10 मिनट लगे ने तो 10 मिनट के जेकर यह स्पीड बदले भी ना जाए ना बढ़े स्पीड ना घटे तो वो जी स्पीड होगी वो की होगी एवरेज होगी जिहदे विच ना इहने स्पीड बदली ना घटाई ना बढ़ाई ठीक है। वैसे तो गया वेरिएबल दे नाल है पर जे कांस्टेंट नाल जांदा तां किन्नी कांस्टेंट स्पीड नाल जांदा कि उन्ने ही टाइम 'च पहुंचदा तो जिन्नी वो कांस्टेंट स्पीड होगी वो की होगी एवरेज स्पीड होगी। इहनूं कड्ढण दा तरीका यही है कि टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम नाल इहनूं डिवाइड कर दो साडे कोल की आंसर आ जांदा है एवरेज स्पीड आ जाती है। इसी तरीके नाल साडे कोल की आ जांदी है इत्थे एवरेज वेलोसिटी। डेफिनेशन सेम वही डेफिनेशन जी है बस उस शब्द डिस्टेंस के सामने क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। इट इज द वेलोसिटी विद विच ए बॉडी विल कवर द सेम डिस्टेंस एज डन विद द वेरिएबल स्पीड इन द सेम टाइम कि वो वेलोसिटी यूनीफॉर्म वेलोसिटी जिहदे नाल उहने सेम डिस्टेंस कवर करना सी सेम टाइम दे विच एज डन विद द वेरिएबल वेलोसिटी जिवें कि उहने वेरिएबल वेलोसिटी नाल कीता है ते किवें कढांगे आपां टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम ठीक है बड़ा सौखा जिहा तरीका है टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। ते लास्ट जी टाइप हैगी है वो हैगी इंस्टैंटेनियस। इंस्टैंटेनियस स्पीड ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब होया आ जिहड़ा शब्द है इंस्टैंटेनियस ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है इहनूं जे तोड़ के देखो शब्द नूं दो भागां च इंस्टैंटेनियस इंस्टेंट मतलब होंदा एक पल उस पल की गल करिए हुण उस पल का मतलब हुण आपां पल किहनूं कहने आ पल समय की बहुत छोटी इकाई है आपां कहने एक पल हो गया अख झपक एक पल च अख झपकी गई एक पल च एक्सीडेंट हो गया एक पल मीनस बहुत छोटा समा ठीक है। इंस्टेंट का मतलब होंदा एक पल तो जिवें मैं कहा कि इस रस्ते दे विच किते 9:05 ते 1 सेकंड तो लेके 9:05 तो 2 सेकंड तक
ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ 1 ਤੋਂ 2 ਸਕਿੰਟ, ਸਿਰਫ 1 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਸਪੀਡ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, 1 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 1 ਪਲ, 1 ਸਕਿੰਟ, 1 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਪਲ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ 1 ਸਕਿੰਟ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਸਪੀਡ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮੋਸ਼ਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਨਾ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ, ਮੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 60 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨਾ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਮਿੰਟ 'ਚ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੀਡ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਸਪੀਡ ਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹੈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਪੀਡ, ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇਕਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਪੀਡ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬੜਾ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੋਰ ਆਊਗੀ। ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਹਰੇਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਹੂੰ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਰੁਕਿਆ ਵੀ ਹੋਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੀਡ, average speed as a time interval delta t at the given instant of the time become infinitely small। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੈਲਟਾ ਡੈਲਟਾ s ਬਟਾ ਡੈਲਟਾ t, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਦਲੀ, ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਦਲਿਆ ਬਟਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਦਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਦਲਿਆ ਮਤਲਬ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:10 ਮਿੰਟ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਦਲਿਆ 10 ਮਿੰਟ। डिस्टेंस कितना बदलिया 0 तो लेके कितना हो गया 10 किलोमीटर हो गया, कितना डिस्टेंस बदलिया, ठीक है। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਪੀਡ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ, ਲਿਮਟ ਲਾ ਲਾਂ, ਲਿਮਟ ਡੈਲਟਾ t ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0, ਡੈਲਟਾ t ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਚੇ, ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0 ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਅਪਰੋਚਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 0 ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ, 0.01 ਸੈਕਿੰਡ, ਲਗਭਗ 0 ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਸਪੀਡ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੇਮ, ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੇਮ ਇਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਆਊਗੀ, बट की आऊगा डिस्टेंस की थां ते डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उम्मीद करदा तुहानूं ये गल समझ आ गई। हुण जो इत्थे की पढ़िया यूनीफॉर्म स्पीड ते यूनीफॉर्म मोशन, इक्को चीज यूनीफॉर्म मोशन व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। ते यूनीफॉर्म स्पीड च भी यही गल लिखांगे, यूनीफॉर्म वेलोसिटी च कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेरिएबल स्पीड मतलब व्हेन बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर समय बराबर दूरी तय ना करे, तां आपां नॉन यूनीफॉर्म मोशन करांगे। यही चीज उधरले पासे और उसे डिस्टेंस के साथ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर बटा टोटल टाइम व्हेन बॉडी इज मूविंग इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मोशन, कि जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम ऊपर की बोलेंगे एवरेज स्पीड, यही चीज उधरले पासे। इनस्टैंटेनियस मतलब द वैल्यू ऑफ द स्पीड एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, एक खास पल के ऊपर व्हेन मोशन की होवे नॉन यूनिफॉर्म, तब बोलेंगे आप इनस्टैंटेनियस स्पीड। ते उधरले पासे भी सेम इनस्टैंटेनियस वेलोसिटी। हुण साडे कोल टॉपिक रह गया छोटा जिहा ग्राफ। हुण ग्राफ तुसीं जिहड़े हैगे ने ਉਹ ਬਣਾਏ ਨੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ग्राफ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ, ठीक है। तो ये भी ग्राफ है। हुण तुसीं आम तौर पर इस तरह ग्राफ देखिया, पर ग्राफ का आप कला आ भाग भी ले सकते हैं, इन्ना भाग जे आपको पता है कि दोनों वैल्यू की ने बिल्कुल प्लस दी ने,
तो मैं इन्ने के भाग का ग्राफ भी बना सकता। ठीक है, जरूरी नहीं हमेशा अपने इस तरह ही बनाना होंगे। जो मैं पता दोनों नैगेटिव ने तो मैं आह वाला भाग भी ले सकता, फिर नीचे को ले सकता, या इतनी नैगेटिव वैल्यू शो कर सकता। तो मैं इन्ने के भाग के नाल भी ग्राफ बना सकता। मेरे को दो तरह के ग्राफ होंगे ने, साडे कोल असीं दो तरह के ग्राफ पढ़ांगे इत्थे। एक तो हैगा पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो जिवें कि पता लग रहा है, ये एक पासे जिहड़ी हैगी पोजीशन होगी, एक पासे होगा टाइम। तो एक्स एक्सिस वाले पासे टाइम लेने होंगे असीं आम तौर पर, क्योंकि टाइम के उपर डिपेंड करता सारा कुछ। तो वाई वाले पासे की लेने पोजीशन। हुण जिवें अपना पहले सब तो पहला देखा सी यूनीफॉर्म मोशन कह लो, स्पीड कह लो। यूनीफॉर्म स्पीड का मतलब की कि बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हम आप वही एग्जांपल ले लेने आ 9 बजे ने 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर किलोमीटर ने 1 2 3 4 5 6 7 इधर 9 बज के 1 मिनट 9 बज के 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट है ना 4 5 6 7 8 9। हुण 9 बजे तो मैं खड़ा सी, 9 बज के 1 मिनट तो मैंने 1 किलोमीटर की दूरी तय की। 9 बज के 2 मिनट तो मैं कितने पहुंच गया, 2 ते पहुंच गया। 9 बज के 3 ते कितने पहुंच गया, 3 ते पहुंच गया। 4 ते कितने पहुंच गया, 4 ते। जिस तरह मैं मिलावा सारे पॉइंटां नूं मिलावा तो की बन गई मेरे को एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ਇਹਦਾ मतलब जेकर सारे को पोजीशन टाइम ग्राफ होवे, एक पासे पोजीशन होवे एक पासे टाइम होवे ते बॉडी की कर रही है यूनीफॉर्म स्पीड नाल जा रही है, तो उसका ग्राफ किस तरह का होगा, स्ट्रेट लाइन इस तरह बढ़ता होया होगा। ਇਹਦਾ मतलब समा भी बढ़ रहा है ते डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, पर बढ़ किवें रहा है, बराबर 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 मात्रा च बढ़ रहा है। हर बारी 1 किलोमीटर, हर एक मिनट 1 मिनट च 1 किलोमीटर। ठीक है, तो इन्हें बोलांगे पोजीशन टाइम ग्राफ। एक पासे पोजीशन है एक पासे टाइम है। हुण ग्राफ चाहे स्पीड बनाए वास्ते बनाओ चाहे वेलोसिटी वास्ते इक्को ही बनूगा। ये नहीं हो सकता भी ये स्पीड वाला वास्ते ही ये वेलोसिटी वास्ते, दोनों वास्ते पोजीशन टाइम ग्राफ सेम ही इस इक्को तरह का होगा। पर जे हुंदा साडे कोल दूजी किस्म नॉन यूनीफॉर्म या वेरिएबल स्पीड कह लो, वेलोसिटी कह लो, तो फिर ग्राफ किस तरह बनता। देखो 9 बजे चले सी, टाइम तो उम्मीद लवांगे आप 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 इधर किलोमीटर ने उधर मिनट ने। हुण पहले मिनट से मैं इत्थे पहुंचे सी किलोमीटर से, दूजे मिनट में कित्थे पहुंच गया 3 ते, तीजे मिनट में कित्थे पहुंचे मान लो 4:30 ते, तीजे 5:30, पंजवें ते कित्थे चौथे ते कित्थे पहुंचे जी मैं 6 ते। ठीक है, पंजवें ते कित्थे पहुंचे जी मैं मान लो 8 ते पहुंच गया। हुण ग्राफ देखो, मतलब ये सीधा नहीं होता। ठीक है, ऐ भी आ सकता है, ये ऐ भी आ सकता है भी स्पीड बहुत समा घट बढ़ रहा है, स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है हर बार। ठीक है, ये ऐ भी आ सकता है कि पहला स्पीड समा बढ़ रहा सीगा, स्पीड बढ़ रही सी, फिर की हो गया समा बदली जा रहा है, जगह बदल उन्हें की करती बंद करती। हुण इहदा मतलब देखो पहला समा बढ़ रहा सी, स्पीड बढ़ रही सी, पर इत्थे जाके उपर नूं नहीं जा रहा, मतलब किलोमीटर नहीं बढ़ रहे, समा बढ़ गया, मतलब इत्थे आके खड़ गया। इत्थे आके हुण इहनूं इस तरह देखो, जिन्हों आप कहते रेस्ट का ग्राफ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5। हम देखो पहले किलोमीटर च 1, पहले मिनट च 1 किलोमीटर, दूजे च 2, तीजे च 3, ये ऐ जा रही। पहले तो आगे देखो स्ट्रेट लाइन, पहला आगे साडे कोले स्ट्रेट लाइन, उस तो बाद रुक गया। हुण रुक गया की है, चौथे मिनट से भी उत्थे खड़ा है, पंजवें मिनट से भी उत्थे खड़ा है, छेवें से भी उत्थे खड़ा है, तो जो मैं इन्हूं जोड़ूंगा तो की बन गया इस तरह। ठीक है, लाइन बिल्कुल सीधी होगी। ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡੇ ਕੋਲ पोजीशन टाइम ग्राफ होवे, ਕਿਹੜਾ ग्राफ होवे, पोजीशन टाइम ग्राफ। जे इस तरह लाइन मारती मैंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो की मतलब है कि समय वाले पासे में तो लाइन जा रही है,
पर पोजीशन वाले पासे ना ऊपर जा रही ना नीचे ਨੂੰ, ਇਹਦਾ मतलब बॉडी ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੈਸਟ 'ਚ ਹੈ। ਕੀ ਐ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਐ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਾਈਨ, ਇੱਧਰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਐ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਾਫ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟਾਈਮ ਕਦੇ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ मैं इस तरह लाइन मारती, टाइम पोजीशन को एक्स ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ आमतौर पर या एस ਨਾਲ, ਜੇ ਆ ਲਾइन मारती ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਹਦੇ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ यूनिफॉर्म मोशन ਦਾ, फर्स्ट यूनिफॉर्म मोशन। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਲਾइन मारती ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ नॉन यूनिफॉर्म मोशन ਦਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੀ, ठीक है। पहला तेजी ਨਾਲ बदल रही सी, फिर हौली हौली, फिर हौली हो गया, होर हौली हो गया, फिर एंड जाके हो गया खड़ गया, ठीक है। तो ये ग्राफ तुम पेपर च इस तरह पा दिते जाते हैं भी दसो भी ये काहदा ग्राफ है, ये काहदा ग्राफ है, आ काहदा ग्राफ है, ਜਾਂ कह देंगे भी यूनीफॉर्म स्पीड ਨਾਲ जा रहा व्यक्ति ग्राफ बनाओ, नॉन यूनीफॉर्म ਨਾਲ जा रहा पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ। तो इसनूं इस करके चंगी तरह समझो सारे का सब, ठीक है। तो अज का साडा जिहड़ा टॉपिक सी इन्ना ही सीगा, तो उम्मीद करदा तुहानूं ये समझ आ गया होना, ठीक है। एक छोटा जिहा टॉपिक साडा रह गया इहदे विच, ठीक है, वो आपां फिर कल नूं करांगे। तो अज तुसीं मैं तुहानूं इहदी PDF भेज दूंगा तो तुसीं उहनूं सारा जिहड़ा हैगा नोट कर लेना, बना लेना। थैंक यू।